जी मैडम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जी लबना। बिफोर हिस्टेरेक्टमी हम लोग कहते हैं कि सर्जरी से पहले हमने बायोप्सी करनी होती है एंडोमेट्रियम की ना, इफ वी आर परफॉर्मिंग हम्म। सर्जरी हिस्टेरेक्टमी ड्यू टू अ मायोमा, तो क्या हम उससे पहले भी एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे? अगर 45 ईयर से अबव पेशेंट है और आप हिस्टेरेक्टमी प्लान कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू बायोप्सी बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द सर्जरी, ताकि आप डिसाइड कर सको फॉर द रिमूवल ऑफ ओवरीज। और अगर फाइब्रॉइड के लिए आप सर्जरी करने जा रहे हो फिर भी जी। अगर 45 एंड अबव पेशेंट है तो बायोप्सी जरूरी है, क्योंकि जो फैक्टर्स सारे फाइब्रॉइड्स को करते हैं बनने में, रिस्क फैक्टर्स है उसके बनने में, वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के भी मोरलेस वही है, यानी हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म एटसेट्रा इनफर्टिलिटी और वो सब। तो इस वजह से 45 से अबव में, तो पहले तो 40 से अबव होता था, अब 45 से अबव वो कहते हैं कि अब 45 आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कर लो तो बेहतर है, ताकि ओवरीज का बीएसओ का डिसाइड कर सको। डिसाइड कर सके। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। सो आज हमने एक्चुअली कंटिन्यू करना है फाइब्रॉइड का ही लास्ट टाइम जो किया था। एक तो हमारे सर्जिकल स्टेप्स भी कुछ रहते थे, दूसरा फाइब्रॉइड्स के बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। हमने मेरा ख्याल है फाइब्रॉइड विद एचएम भी कर लिया था इन अ यंग पेशेंट एज वेल एज इन अ पेशेंट हु इज 40 एंड अबव। सो आज मेरा ख्याल है एक तो लुबना ने प्रेजेंट करना है, और अगर पिछले वाले जो प्रेजेंटर्स हैं वो दोबारा से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिनेरियोज बताती जाती हूँ। लुबना के पास अगर कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है तो पहले वो कर लेते हैं फाइब्रॉइड से रिलेटेड, फिर हम मायोमेक्टोमी के स्टेप्स भी जरूर कर लेंगे जी। नहीं मैडम, आप सिनेरियो दे दें। अच्छा, इसके डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं फाइब्रॉइड्स के। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आता है इनफर्टिलिटी के साथ ना, कि फॉर एग्जांपल पेशेंट इज 32 years of age and she's married for 8 years and she presents with she's nulliparous and she wants to conceive, and she presents with an ultrasound report which shows multiple fibroids, largest one 4 into 5 centimeters on anterior wall, and the rest are 3 into 2 and 1 into 2 centimeters, total in 4 in the uterus. So how will you proceed? इसका क्विकली कर लेते हैं। आप जल्दी से, अब ओके। आपके पास ये समझ लो हमारा 10 मिनट्स का ही स्टेशन है, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट डिस्कस करनी है। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन अब हमें जल्दी से स्ट्रक्चर डिस्कशन में करके ओके बता दो। madam, after mutual introduction, repo building, and confirming the biodata given to me, I will inquire from the patient about her last menstrual period and about her regularity of the cycle. Then I will take, if the as he is a married for 8 years, then I will take her subfertility history along with history of heavy menstrual bleeding. Regarding this, madam, I will inquire her about either the couple were living together, what about their coital frequency, is there any coital difficulty, and then I will briefly inquire about husband age, husband occupation, any history of the diabetes, hypertension, or any history of the surgery done, and or any history of the mom's or radiotherapy. And regarding the female partner, I will inquire her about history of her last menstrual period, and will inquire about any history of heavy menstrual bleeding in terms of duration, frequency, amount of the bleeding, number of the days he is bleeding, and the sanitary pad she is using, either homemade or a market made pad. And then will inquire either she has to change her pad in the night time, and any passage of the clot, and if there, then the size of the clot. Any history of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, history of the severe dysmenorrhea that start before the menstrual cycle, either it relieved with the cycle or get aggravated with the cycle. Then we'll take history of any history of feeling of mass in abdomen, then history of altered urinary and bowel habits, any history of any altered urinary bowel habits, and any history of weight gain, acne, excessive hair growth or hair loss, any history of excessive heat or cold intolerance. And then history after this, I will inquire about any history of her fatigue and weakness, history of shortness of breath and palpitations. After this, I will inquire from the couple any investigation or treatment they have taken regarding this problem up till now. Then we'll take briefly past medical history, past surgical history, social history, and then any history of blood transfusion or followed by any allergy. After this, I will proceed towards the investigation. नहीं, इन्वेस्टिगेशंस तो एग्जामिनेशन तो किया ही नहीं। Examination. After this, sorry, I will proceed towards the examination of the patient. बताएं एग्जामिनेशन। Examination of both the partners.
And first the female partners, and I will check her body mass index, will take the vitals, including the blood pressure, temperature, pulse, respiratory rate, and then we'll do the thyroid examination, breast, and then the chest examination. Abdominal examination, I will inspect the shape of the abdomen, presence of, and then the site of the mass, if mass is present, any discoloration, and any scar mark present. Superficial palpation, to rule out any tenderness, deep palpation after visceromegaly. Then I will, after visceromegaly, then I will inspect that I will inspect if mass is present, then its site, size, temperature, tenderness. मैडम ये साइज इतना छोटा है तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी मैस, तो मैं सिर्फ अपने उसमें वो अगर कर रही हो हूँ। तो अभी तो वो हाँ तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है, कई दफा अल्ट्रासाउंड पे होता जी। है, लेकिन कुल मिला के वो इतने सारे होते हैं फाइब्रॉइड्स के, वो आपको पूरी यूट्रस का साइज ऐसा होता है कि पैल्पेबल होता है उसके ऊपर ना, एब्डोमेन पे। Then I will inspect, then I will palpate for the site, size, temperature, tenderness, surface, margin, mobility, and either the lower limit is reachable or not. And then mass is present, so I will also do the percussion. Then we'll proceed towards the pelvic examination. We'll inspect the vulva and गुड। vagina for the presence of bleeding or discharge, and then do the sterile speculum examination. We'll inspect the cervix for the presence of any discharge or polyp or any abnormal pathology. Then we'll do the bimanual examination for the uterine size, position, tenderness, consistency, regularity, any fullness in the fornices. And if the mass is palpable, then either it is a separately palpable from the uterus or not. And at the end, after doing examination, I need to have a look on my fingers for the presence of any bleeding or discharge. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो ठीक था, हमने लास्ट टाइम पे हिस्ट्री एग्जामिनेशन काफी डिटेल में डिस्कस कर दिया था, फाइब्रॉइड से रिलेटेड, और इनफर्टिलिटी का भी काफी कर चुके हैं। इट वाज नॉट बैड, इसमें कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की जो हिस्ट्री है उसमें डेफिनेटली आप शुरू से वही स्टार्ट करते हो कि दे मैरिड फॉर लाइक 8 years, इफ दे लिविंग टुगेदर और नॉट, एनी डिस्पैरूनिया और इंटरकोर्स की हिस्ट्री, और फिर सारा उसका फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल और वो सारा ठीक है। उसके बाद आप उसका जो है, फिर आप एज यू नो के अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने दिया हुआ है फाइब्रॉइड, तो यू कैन स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड एक्चुअली, और फिर आप उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर एबनॉर्मल नॉर्मल को कंपेयर करो। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जिक्र नहीं है हिस्ट्री में, इसलिए हम सिर्फ पूछ लेंगे कि है कि नहीं है। अगर है तो फिर डिटेल में, वरना आप सिर्फ उसे फिलहाल, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। और उसके बाद आपने उसकी बाकी सारी हिस्ट्री जैसे लुबना ने ली कि हेड टू टो सब फर्टिलिटी की सारी कॉजेज रूल आउट करनी है, हार्मोनल भी सारी वजूहात उसकी निकालनी है, राइट। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली मेल पार्टनर, आपने मेल पार्टनर का भी सारा कर लेना है। उन सब चीजों में से पहले अगर आप एक क्विकली, जब व्हेन यू आस्क अबाउट द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल और वो सारा, उसके फौरन बाद अगर आप पूछ लो कि अभी तक की रिपोर्टों में अबाउट द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड पे तो चलो फाइब्रॉइड आ गया, कोई ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ हुआ या नहीं, ये 3 टेस्ट आप एकदम से पूछ लो उससे, तो साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा एलैबोरेटेड हिस्ट्री कहाँ पर लेने की जरूरत है। स्कैन पे तो फाइब्रॉइड है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि एलैबोरेटेड लेना है। कई दफा वो कहते हैं कि सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भी उसकी एबनॉर्मल थी, तो फिर आपने ऑफ कोर्स पे सेमेन एनालिसिस की पूरी मेल की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में लेना। यानी कि उसमें फिर आप सारी हिस्ट्री, और फिर जैसे एग्जामिनेशन पे लुबना ने कहा कि आई वुड लाइक टू एग्जामिन बोथ पार्टनर्स, यानी हस्बैंड वाइफ बोथ, उसमें हम हस्बैंड का जिक्र शायद तब भी करेंगे अगर हमारे पास सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ बताई गई हो। अगर नहीं है तो फिर अपने केस को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हमने फीमेल तक ही रहना है। तो क्विकली, मैं असल में हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत तेजी से बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कर लिया हुआ था हिस्ट्री एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, स्पेशली सबफर्टिलिटी को लेके, एंड व्हेन देयर इज अ कॉज गिवन एज वेल, आपका केस और आसान हो जाता है। अगर आपके पास सबफर्टिलिटी में कोई कॉज दे दी गई है तो आपका जो केस है वो ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि इसमें एक फाइब्रॉइड का फिर भी जिक्र है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि फाइब्रॉइड ही कॉज है सब फर्टिलिटी के या नहीं। सो आपने सबसे पहले वही 3-4 बातें जो हर सब फर्टिलिटी में पूछते हैं कि दे मैरिड फॉर 8 years, इंटरकोर्स की हिस्ट्री, फर्स्ट मैरिज, लिविंग टुगेदर और नॉट। उसके बाद 3 चीजें, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। ये तीनों का पूछ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी ज्यादा एलैबोरेटेड हिस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर इफ शी सेज के सेमेन एनालिसिस इज नॉर्मल, तो फिर हस्बैंड की हिस्ट्री एंड पे भी आ सकती है। इफ शी सेज के ट्यूबल पेटेंसी वाज ऑल राइट, तो वो आपकी जो प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री, सर्जरी की हिस्ट्री, वो सारी चीजें
वो भी एंड पे आ सकती हैं। इफ शी सेज कि स्कैन पे फाइब्रॉइड है, वो तो आप उसे एलैबोरेट कर सकते हो। इफ शी सेज कि देयर आर फाइब्रॉइड्स इन स्कैन एंड दे से दैट देयर इज प्रॉब्लम इन द ट्यूब्स एज वेल, तो फिर आपकी ये दोनों चीजें मिला के आप हिस्ट्री ज्यादा एलैबोरेटेड ले लोगे। सो सब फर्टिलिटी में तो आप इस तरीके से हिस्ट्री लेते हो कि आप पहले तो शुरू में एक पेशेंट से ही पूछ लेते हो कि अभी तक की जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हुई हैं उसके अंदर आपका क्या कॉज निकली है, और फिर उस कॉज को लेकर आप डिटेल में दे देते हो। और अदरवाइज अगर खाली फाइब्रोइड का है तो वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि कि खाली फाइब्रोइड की हिस्ट्री है वो सारा। एग्जामिनेशन के अंदर वाइटल्स तो यस, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसके अंदर काफी चीजों में इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि बिकॉज शी हैज गॉट अ मैथ्स, तो इसके अंदर बीएमआई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट देन बाकी चीजें तो लुबना की ठीक थी। थोड़ा ठीक है, उसने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड के हिसाब से बिल्कुल फोकस्ड पे ज्यादा जोर दिया, विच इज ऑल्सो फाइन बिकॉज हमने मैनेजमेंट भी उसी में डिस्कस करनी थी। तो मैथ से रिलेटेड थोड़ा सा सेक्रल एडिमा की बात आ जाती है और वेरिकोज भी है वेन्स की, बिकॉज इफ देयर इज अ मैस और वो प्रेशर कर रहा हो तो ये चीजें भी पेशेंट के अंदर हो सकती हैं, तो ये आपने साथ पूछ लेना है। और उसके अलावा तो आई थिंक बाकी चीजें तो लुबना ने कवर कर दी है। और मैथ्स का जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि सारे फीचर्स बहुत, एवरीवन इज वेरी सेंसिटिव टू हेयर ऑल दीज पॉइंट्स। तो आपका एग्जामिनर जो, इफ यू डोंट टेल या इफ यू डोंट मेंशन देम, तो वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी फॉर अ गुड डीडी, अपने एग्जाम में अच्छा डीडी बनाने के लिए आपको जो है ना, ये सारे पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं, क्योंकि हो सकता है स्कैन, देखो कई दफा होता है स्कैन की रिपोर्ट भी ठीक ना हो, और कई दफा होता है कि एडिनोमायोसिस हो, कई दफा मतलब यूट्रस का साइज बड़ा क्या है या क्या है। तो वो सारी चीजों के लिए आपने एक हमेशा डीडी अपने माइंड में बनाई होती है हिस्ट्री के वक्त, जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में मजीद उसको कट शॉर्ट कर रहे होते हो अपनी डीडी की लिस्ट को। जैसे कि इसके अंदर अगर ये तो खैर सब फर्टिलिटी का केस है, बट इफ देयर इज अ mass so it can be fibroid, it can be adenomyosis, और it can be an adnexal mass also, तो आपका एग्जामिनेशन उस चीज को और ज्यादा कंफर्म कर देगा कि वो क्या है। ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशंस क्विकली जी। अच्छा, अभी तक किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो करते हैं, कुछ पूछना है तो बताएं। मैम जो मैडम, ठीक जो है। आपने बताया कि मैम अल्ट्रासाउंड और सेमिन एनालिसिस और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हम इनिशियली मतलब शुरू में पूछ लो, शुरू यही में तो एक पूछ लें। टिप है हम्म। जी। ये जी। इनफर्टिलिटी के केस में आप समझ लो कि एक टिप है आपका, ये जो इनफर्टिलिटी का जो हिस्ट्री है ना, ये तीन पोर्शंस में कह लो या तीन पैराग्राफ्स में कह लो है डिवाइडेड। पहले में आपने पूछ लेना है उसकी मैरिटल सारा स्टेटस और उसका, कि इट्स द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, बोथ आर लिविंग टुगेदर, और वो सारा हिस्ट्री ठीक है। उसके बाद आपने जो सेकंड उसमें है, आपने पूछ लेना है कि हस्बैंड रिपोर्ट, वाइफ अल्ट्रासाउंड, एज वेल एज तीसरी चीज इज फॉर द ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। और इसमें भी आपका रिपोर्टें मांगने का भी एक तरीका होता है एक्चुअली, ये जो मैं आपको इस तरीके से कह रही हूँ ना, इसको इसी सीक्वेंस में इसलिए बोलना होता है क्योंकि आपने सबसे पहले सबसे कम इंटरवेंशन वाली रिपोर्ट का नाम लेना है। सीमेन एनालिसिस इज द इजिएस्ट टू गेट, number one. Number two, ultrasound is the second easiest thing to get, and number three is the tubal patency. Tubal patency बहुत मुश्किल होता है कराना। सो आपने कम इंटरवेंशन वाली इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले बोलनी है। ठीक है। जब ये तीन चीजें आपने पूछ ली और पेशेंट ने कहा कि उसकी फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फिर आपकी हिस्ट्री जो, अब जो तीसरा पैराग्राफ है ना, वो स्टार्ट होगा हस्बैंड की हिस्ट्री से। अगर वो पेशेंट आपको कह रही है कि हस्बैंड की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, केस आपका सारा एजोस्पर्मिया का है या ओलिगोजोस्पर्मिया का है विद सब फर्टिलिटी, और आप उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे पड़े हुए हो, आप उसके थायराइड के पीछे पड़े हुए हो पेशेंट के, मतलब और फिर बाद में एंड पे जाके, ठीक है आपने बेशक कंप्लीट हिस्ट्री भी बता दी है मेल की, बट एक देखो जो सुनने वाला है वो भी इंसान है, वो शायद उस चीज को उस तरीके से रजिस्टर ना कर सके। लेकिन जब आपने शुरू में ही पेशेंट से पूछा and you got to know that there is some problem in the husband semen analysis, and you started and elaborated the husband's history in more in detail, तो वो एक सुनने वाले को भी ज्यादा रजिस्टर होता है, और वो आपका हिस्ट्री को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है। फिर वो लेके, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि उसके बाद बाकी हिस्ट्री पूरी नहीं करनी है, आपने सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री तो पूरी करनी है। बहुत सारी चीजें पेशेंट को नहीं पता होती जो उसके अंदर कॉज हो सकती हैं, तो आपने अपने हिसाब से पूरी हिस्ट्री पूरी करनी होती है सब फर्टिलिटी की। लेकिन यू ऑलवेज स्टार्ट और इलेबोरेट इट मोर फ्रॉम द पॉइंट जहां पे आपको कॉज नजर आ रही है। ठीक है। क्योंकि आपने तो उस कॉज को ट्रीट करना है ना। ठीक हो गया। सो इससे इसको जी। अगर आप इस पैटर्न में, मैं आपको एक सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, आपको मेरा ख्याल है आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम टिप्स फॉर द एग्जाम।
अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी अदर वे और आपको लगता है कि आप उस तरीके से कवर कर रहे हो, वो कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग। सुनने वाले को ज्यादा रजिस्टर होगा, वो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कॉज को बाद में पहुंच रहे हो और पूरी हिस्ट्री हेड टू टो पहले ले रहे हो, तो वो सीरियसली सुनने वाले को बिल्कुल नॉनसेंस लगता है। यू नो, somebody knows that it's a case of previous surgeries or whatever and it's a case with a tubal blockage, और आप पीछे पड़े हुए पेशेंट के साइकिल्स के, आप पीछे पड़े हुए उसके वेट गेन के, आप उसके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट पहले आप उसकी ट्यूबल हिस्ट्री कंप्लीट बताओ, उसके बाद आप इन चीजों को लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो इन द सब फर्टिलिटी हिस्ट्री। और मैम एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया जी। किसी ने कुछ और ऐड करना है? जी मैम मैम अगर पेशेंट हमारे पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ आई है, मींस कि विद रेगुलर साइकिल, तो हमें क्या इरेगुलर साइकिल से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पूछनी चाहिए, थायराइड और पीसीओज? कोर्स, देखो HMB बेशक फाइब्रॉइड की वजह से है, लेकिन उसके साथ और भी कॉज हो सकती है। वी नो के PCO के साथ थायराइड जो है, मोर देन 12 to 15% पेशेंट्स विद PCO हैव हाइपोथायरॉइड, ये तो रिकमेंडेड बात है ना। तो थायराइड की हिस्ट्री लिए बगैर जो है ना, आपका वो बात नहीं पूरी होगी, ठीक है। तो आपने बाकी चीजें भी ब्लीडिंग के साथ 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 रूल आउट करनी है, ठीक है। सो ओके, इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। जी मैडम। जी लुबना जी। Madam, regarding investigation, complete blood count with date, including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count and platelet count, खैर midstream आहिस्ता आहिस्ता urinary. चलो ना। HB इस Okay. पेशेंट की है 11, और क्या चाहिए? Her TLC count and platelet count. नॉर्मल। Her blood group and RH factor. B पॉजिटिव। Midstream urinary analysis, purpose, protein and sugar. दैट्स ओके, नॉर्मल। Her viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV and anti-HIV. B इज नेगेटिव, C पॉजिटिव है, और HIV नेगेटिव है। Then, madam, her liver function test for AST, हम्म, ALT and bilirubin level. नॉर्मल है। Okay. Madam, PCR report is available for hepatitis C, qualitative नॉट PCR report. अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। Okay. And after this, I need to know about her pelvic ultrasound for endometrial thickness, regularity, blood flow, endomyometrial echo texture. And as the fibroid is present, I would like to know about the FIGO scoring of the fibroid. ठीक है, वेरी गुड। सो अल्ट्रासाउंड वही है जो मैंने आपको बताया था, कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, 4 into 5 सेंटीमीटर एंटीरियर वॉल पे है, बाकी टोटल 4 है, 3 into 2, 1 into 2, इस तरह से। फीगो स्कोरिंग इसकी इस तरह है कि जो 1 into 2 है वो फीगो स्कोर 1 है, बाकियों की 3 and beyond है। Okay. And then, madam, her husband semen analysis report for the count, morphology, and motility. Then her day 2 serum FSH and serum LH level, day 21 serum progesterone level. And the hysterosalpingogram, if done previously, I would like to review the films of hysterosalpingogram. ठीक है। सो हस्बैंड की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, ठीक है। और बाकी FSH LH भी इसके नॉर्मल है, HSG इज नॉट अवेलेबल, इट्स Okay, नॉट डन एक्चुअली। okay. After this, I will manage my patient. And regarding management, I will counsel my patient that she is having multiple fibroid uterus, and that could be the cause of her subfertility. And for that, she needs for that, I will give her treatment option in the form of a open myomectomy with a laparoscopic and dye test, and then along with hysteroscopy. And the other option is the laparoscopic myomectomy along with hysteroscopy. But my number one option is open myomectomy, and then hysteroscopy also. ठीक है। अच्छा देखो, बात ठीक है, बट आपने चुप नहीं करना। एक बात तो ये, आपने एग्जाम में ना बोलते रहना जब तक एग्जामिनर ना आपको रोके कोई सवाल करे, वो खुद कीप ऑन एडिंग क्वेश्चंस, बट आपने अपने केस को खुद डायरेक्ट करना है,
अच्छा, दूसरी चीज ये असल में Okay. तो हमने मैनेजमेंट और सर्जरी ही इसमें आज की क्लास में डिस्कस करनी है, वरना तो हम पिछली क्लास में वो कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि जब आप इसका मैनेजमेंट बोल रहे हो एंड यू स्टार्टेड विद द काउंसलिंग। अब देखो, एक पेशेंट है हु इज मैरिड फॉर 8 years एंड हु इज बीन ट्राइंग टू कंसीव, टेस्ट वो सारे करा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं फर्क पड़ा उसको। तो शी रियली वांट्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बट अगेन एज अ डॉक्टर हमें भी पता है कि जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड इज द ओनली कॉज फॉर हर फर्टिलिटी। और एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि वी ऑल्सो डोंट नो कि हम मायोमेक्टमी तो कर देंगे तो इज शी लाइक गोइंग टू, उसका ये मकसद नहीं है कि हमसे ये पता चले कि उसकी मायोमेक्टमी होनी है नहीं होनी। उसका तो ये इस वक्त मकसद है कि वो कंसीव कर सकेगी कि नहीं। ठीक है ना? सो उसको फिर उसी लाइन पे ही आपने पहले काउंसल करना है। आपने यूं ही कहना है कि आई वुड लाइक टू काउंसल माई कपल that the probable cause of fertility seems to be fibroid uterus as all other reports are normal. ठीक है? And considering that for the treatment of this fibroid, surgery is the only option for her. And during surgery, I will explain to her. अभी इस वक्त मोड ऑफ सर्जरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बात करो कि आप उसका बाकी का ट्यूबल पेटेंसी का क्या करोगी और सर्जरी के बाद क्या प्रोबेबिलिटीज है उसके कंसीव करने की। ठीक है? तो मोड ऑफ सर्जरी तो सॉरी, उससे अगला स्टेप है। तो आपने पहले उससे यही बात करनी है कि आई विल एक्सप्लेन टू हर दैट ड्यूरिंग सर्जरी द ट्यूबल पेटेंसी कैन बी चेक्ड एज वेल, but again the tubal patency will not be like 100% and for future forever because she'll have a surgery, and after surgery, because of the surgery itself, the tubes may get blocked. Even if they are open before surgery, they may get blocked after surgery because of the effect of surgery itself. So my plan of management will be to remove the fibroids and do the diet test during the surgery, and then later on as well to reconfirm the patency if it is there, and plan fertility accordingly. ठीक है? सो ये उसका एक पूरा, उसका एक शॉर्ट अगर आप कहो कि प्लान या एम ऑफ मैनेजमेंट होगा। फिर उसके बाद इस सारे एम को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अब आप मुझे बताओ। ठीक है. And madam, for this, I will, as her hemoglobin is 11 gram per deciliter, and her hemoglobin is 11 gram per deciliter, I will still cross match and 1 unit of the blood. And after this, I will, maintaining the WHO surgical safety checklist, I will put my patient on the elective list. And after induction of the anesthesia, I will do the examination under anesthesia, will confirm the findings. And then I will give transverse incision in the uterus. And then I will inspect and after this, I will after opening the abdomen, I will inspect the uterus and for the size of the fibroid, and will palpate for the presence of the other fibroid. And after this, I will give incision on the myoma at the maximum bulge. And as madam, I am performing a surgery on a female who required a fertility. So I will be very much conscious about the meticulous surgical approach, maintaining the hemostasis, and will perform the surgery so that later on the adherence will be minimized. So even before giving incision on the uterus, as hysterosalpingogram report is not available, I will do the laparoscopic and eye test. And after this, I will give and after laparoscopy and eye test, I will do the incision on the myoma and with the coagulation cautery to लेप्रोस्कोपी minimize कब the की adherence. आपने? सॉरी एक मिनट। आपने लेप्रोस्कोपी कब ऐड की है? इंसिजन आप ट्रांसवर्स इंसिजन देके यूट्रस तो मतलब यूट्रस आपके सामने पड़ी हुई है, लेप्रोस्कोपी किधर कर रहे हो? Oh, sorry, madam, slip of tongue हो गया. Laparoscopy dye test जो बोलते हैं. Then I will perform her dye test will be done before opening the uterus. अच्छा ठीक है, ओके। Before opening the uterus, dye test will be done, and after this, IV injection transamine will be given to the patient, and then the tourniquet can also be applied to minimize the bleeding. And then, with the help of a coagulation cautery, a transfer incision will be given on the myoma. And then the edges of the myoma with the hold with the help of the Ellis forceps, and then with the enucleation of the myoma will be done. And then the myoma bed will be repaired in such a manner that there should be a minimal dead space and minimal adherence will be there, and end-to-end repair will be done. And after end-to-end repair will be done, and then to minimize the adherence, meticulous surgical techniques will be using. And then madam, at the end, I will also apply the hyaluronic acid. Can also be spray of the hyaluronic acid can also be done. It will also help in minimizing the adherence. And after this, I will and then making sure that all the myoma has been removed.
then I will close the abdomen in the reverse order, and then I will and shift my patient in the recovery room. I will do her monitoring will be done, and IV antibiotic, IV fluid will be done. And after this, I will counsel my patient that she should try for next pregnancy for at least 3 to 6 months. I will Mm-hmm. also counsel her that intraoperatively, I will also counsel about my intraoperative finding of the tubal patencies, that either the tubes were patent or not. And I will, if the tubes were patent, then I will, if the tubes were patent, then I will even counsel my patient that she should have her tubal patency test done after 6 months. Mm-hmm. ठीक है, सो ओके, मैं आपको बताती हूँ, यू वर नॉट बैड, यू वर फाइन। आपको एक चीज की बड़ी सख्त कंफ्यूजन है कि लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करनी है नहीं करनी है, और कब करनी है और कब नहीं करनी है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। शायद लास्ट क्लास में मैंने आपका जिक्र किया था, मैं आपको इसीलिए मैंने आज की क्लास एक तरह से कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर किया, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मायमेक्टमी इटसेल्फ, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, बट आपने जब इंशाल्लाह कल को खुद कर रहे होना है, या इवन जब आपके डिपार्टमेंट्स में होगा एंड यू आर इन्वॉल्व, तो यू शुड नो कि किस तरीके से चलना है, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके, आपका ठीक है स्टेप्स, बट इसको आप और अच्छा भी कर सकते हो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी। जिस टाइम पे आपने लेप्रोस्कोपी बोला, सही बात है, उस टाइम पे तो शायद एग्जामिनर आपको, मैंने तो रोक दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर ना रोके और वो आपको डायरेक्ट फेल कर चुकी हो, विच मीन्स, क्योंकि लेप्रोस्कोपी तो हो ही नहीं सकती अगर एब्डोमेन ओपन है ना, उसमें तो आपने न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना है। आपने एब्डोमेन के अंदर एक बलून क्रिएट करना है। बलून तो तब क्रिएट होगा ना, भरेगा, जब उसकी पूरी वॉल्स इंटैक्ट होंगी। अगर पेरिटोनियल कैविटी ओपन है तो हवा किधर भरी जाएगी। सो वो एक ब्लंडर हो गया। बट आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको अभी क्लैरिटी से बताती हूँ मायोमेक्टमी के स्टेप्स, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप इस तरीके से ही परफॉर्म करो तो शायद पेशेंट्स का बहुत भला हो जाए। सो आई विल टेल यू, दो तरीके से बताऊंगी। एक उस सेटअप के लिए जहां आपके पास लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का की फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है, और एक उस सेटअप के लिए जिसमें आपके पास ये फैसिलिटी नहीं मौजूद। अगर तो आपके पास हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की फैसिलिटी मौजूद है एंड यू हैव स्किल्स आल्सो, तो आप, इट्स ऑलवेज बेटर टू कि मायोमेक्टमी से पहले एक दफा हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप जब व्हेन यू यू डू हिस्ट्रोस्कोपी, उसका हिस्ट्रोस्कोपी का मकसद क्या है? जैसे मैंने अभी कहा, लुबना ने बड़े अच्छा सवाल किया था अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में कि आई वांट फिगर स्कोरिंग ऑफ द फाइब्रॉइड्स, एंड आई टोल्ड हर के 3 एंड लेस है, 1 एंड 3 एंड बियॉन्ड है फिगर स्कोर। तो बट अगेन अल्ट्रासाउंड इज नॉट 100% करेक्ट फॉर द फिगर स्कोरिंग, so you need to see it with your eyes as well at times। होता ही है, if you don't have a hysteroscope और आप ऊपर से perform करें, you don't open the uterine cavity, because your ultrasound says that all the fibroids are 4 and beyond, for example, or 3 and beyond, and there is no fibroid in the submucosa, तो आपने cavity नहीं खोली and you remove all the fibroids, but there was a little 1 centimeter or 2 centimeter fibroid which was submucosal present, और आपने abdomen बंद कर दिया, patient चली गई। लेकिन सब म्यूकोजल फाइब्रोइड चाहे 1 सेंटीमीटर का हो या 2 सेंटीमीटर का हो, बहुत तंग करता है जिंदगी में। इट कॉजेज लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो सब फर्टिलिटी की सबसे बड़ी कॉज होती है। तो अगर आपके पास हिस्ट्रोस्कोपी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हिस्ट्रोस्कोपी करके आप एक दफा सब म्यूकोजा में देख सकते हो कि फाइब्रोइड कोई है या नहीं है। एक चीज तो ये। अच्छा, दूसरी चीज ये okay, so if you have hysteroscopy or laparoscopy, you perform hysteroscopy to see, to evaluate the submucosa, and then you do the laparoscopy। आप laparoscopy अम्लाइका से करो या पामर पॉइंट से करो, एक दफा आप पूरा व्यू ले लेते हो, वेयर आर द फाइब्रोइड्स, कितनी बड़ी यूट्रस है। और बट उसके लिए अगेन आपको जब व्यू ले रहे हो, यू हैव टू नो योर एनाटमी वेरी वेरी वेल। ऐसे हवाओं वाली एनाटमी के साथ नहीं, मतलब फिर एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फाइब्रोइड्स हैं एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल इफ इट इज इन द ब्रॉड लिगामेंट, और इफ इट इज एनीवेयर एल्स, तो यूरेटर कहाँ जा रही है, आपकी इंटरनल एरिया कहाँ जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लेप्रोस्कोपी में आपने एक दफा मैपिंग जो पूरी की ऑर्गन्स की, उसका मकसद सारा ये है कि आपका एक बड़ा इंसिजन छोटे इंसिजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेन यू नो एग्जैक्टली कि आपका फाइब्रोइड कहाँ पर लोकेटेड है, आपकी ब्लड वेसल्स बड़ी वाली कहाँ कहाँ उससे दूर है, अगर ऑडली पोजिशन्ड फाइब्रोइड है तो वो फाइब्रोइड यूरेटर से कितना दूर है, तो यू डोंट नीड टू गिव अ वेरी बिग इंसिजन टू रिमूव इट। इवन आप बहुत बड़े बड़े फाइब्रोइड भी, यू बिलीव इट और नॉट, आप इवन मे बी 24-28 वीक साइज फाइब्रोइड भी लोअर ट्रांसवर्स बहुत स्मॉलर इंसिजन से निकाल सकते हो, इफ यू नो द मैपिंग और एनाटमी ऑफ द होल ऑर्गन्स, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि आप चाहे बड़ा भी फाइब्रोइड है तो ट्रांसवर्स इंसिजन से
पीसमील करके स्मॉल इंसिजन से निकाल सकते हो, लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ इसके लिए आपके स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड्स ऑन कितना कर चुके हो। अगर इस तरीके से नहीं किया तो डोंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि अगर आपका वो जो मैस बड़ा है और आप छोटा इंसिजन देके बैठ गए हो तो ऐसा ना इन्वर्टेड टी पे एंड अप हो जाओ। तो आपने वो करना है जिसके लिए आपका हैंड्स ऑन है, जिसके लिए आपके पास इर्द गिर्द स्किल्ड लोग मौजूद है। एक्सक्यूज मी। तो मैंने आपको बता रही थी मैं कि हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी का अगर आपका सेटअप है, तो फर्स्ट यू परफॉर्म हिस्ट्रोस्कोपी ताकि आप एंडोमेट्रियम देख लो, उसका कोई फाइब्रेट तो नहीं, ऊपर से आपने सारी मैपिंग कर ली। उसके बाद आप, यू डोंट नीड टू गिव अ वेरी बिग ट्रांसवर्स इंसिजन, यू कैन गिव अ स्मॉल इंसिजन। इसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीड मिनी लेप्रोटमी फॉर मायमेक्टमी। लो ट्रांसवर्स इंसिजन देके you again open the abdominal cavity, you observe all the organs. Meticulous बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, you can just tell by your way that how are you going to do the surgery. You are dealing with the tissues very gently, you are not using sponges on the tissues directly. And what you are going to do is that after locating all the fibroids again in the abdominal cavity, आपने यहाँ पर सबसे पहले, अगर if I think vasopressin is easily available, टर्लोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन ये अवेलेबल होता है, इसका यूज करना भी आना चाहिए। इंट्रामायोमेट्रियल आप वेजोप्रेसिन इंजेक्ट करते हो, विच इज टू मिनिमाइज ब्लीडिंग। ये सबसे आसान तरीका है ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने का। व्हाट प्रीवियस, ओके, ये मैं आपको भी नायला आपका आंसर करती हूँ, चैट पर क्वेश्चन की। सो आपने वेजोप्रेसिन किस तरह लगता है, 1 ml का एम्प्यूल होता है, उसमें 20 यूनिट्स का वेजोप्रेसिन होता है। 20 यूनिट्स वेजोप्रेसिन 200 ml नॉर्मल सेलाइन में आप डाइल्यूट करते हो, एंड इन वन सर्जरी यू कैन गिव 4 to 6 यूनिट्स ऑफ वेजोप्रेसिन। ठीक है, तो ये आप इसको इसी तरीके से याद रख लो। 4 to 6 यूनिट्स इस तरीके से बनेंगे कि अगर आप 20 cc सिरिंज यूज कर रहे हो, तो अगर आप मैक्सिमम 5 बट 4 सिरिंजेस दे दोगे तो उससे ज्यादा की लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल टिप बताई है, क्योंकि कल को अगर आप कर रहे हो तो यू शुड नो ऑल्सो। सो आप वेजोप्रेसिन डालोगे इंट्रामायोमेट्रियल, नेवर इंट्रावेस्कुलर, बिकॉज इट्स अ वेजो कंस्ट्रिक्टर। और आपने इंट्रामायोमेट्रियल डाला ताकि मायोमेट्रियम में जाकर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करके उसकी ब्लड सप्लाई कम से कम कर दे। ब्लड वेसल में चला गया तो वो हार्ट में जाके एकदम से कार्डियक अरेस्ट करेगा, एंड यू नो वेरी हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप हमेशा एस्पिरेट करके देखते हो वेजोप्रेसिन को कि वो जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं चला गया। अच्छा, उसके बाद आपने जब पूरी ओवरऑल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो वो आपको व्हाइट सा होता हुआ नजर आ रहा होता है। जब आप एक दफा ये कर देते हो ना, तो यू विल सी के फिर ना तो टोनिके की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी और चीज की, ना ही यूट्राइन आर्टरी को बंद करने की जरूरत पड़ती है, किसी भी और चीज की नहीं पड़ती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू विल फाइंड आउट जो ओपन सर्जरी में ओपन मायोमेक्टमीज करते हैं, दे विल रियलाइज दैट आफ्टर यूजिंग दिस वेजोप्रेसिन मोर देन आई वुड से मे बी 70 to 80% ब्लड लॉस कम हो जाता है। इतनी साफ सुथरी सर्जरी हो रही होती है कि आपको खुद ही मजा आ जाता है। ठीक है, सो इफ यू डोंट हैव दिस वेजोप्रेसिन, गेट इट अवेलेबल, और यू कैन गेट इट फ्रॉम द एनेस्थेटिस्ट ऑल्सो। आपके एनेस्थेटिस्ट के पास जरूर होता है, तो अपनी फार्मेसी से बात करके आप इसको अवेलेबल कर सकते हो। एक्सेप्ट के कोई बहुत पेरिफेरी वाले यूनिट्स हैं या फिर बहुत वो, लेकिन आई एम श्योर कि टर्शरी के यूनिट के अंदर ये चीजें मौजूद होंगी। सो आपने वेजोप्रेसिन लगा लिया, उसके बाद आपने यू स्टार्ट ऑफ विद मायोमेक्टमी। ना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लबना ने कहा कि मैं ट्रांसवर्स इंसिजन दूंगी मायोमा पे, नॉट ट्रांसवर्स इंसिजन एनीवेयर। यू हैव टू लोकेट वेयर द मायोमा इज। इफ मायोमा इज, अब आप देखो इंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में फर्क है। जब आप पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे सर्जरी करोगे तो इट विल लेटर ऑन लीड टू मोर एडिशंस, वो आपकी ट्यूबल ब्लॉकेट का ज्यादा ज्यादा वो बनेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट ऑन अ पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड यू गिव अ वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल इंसिजन देके आपकी एक तो सूचरिंग उसमें ज्यादा अच्छी होगी, एंड ऑन इंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड यू गिव अ ट्रांसवर्स इंसिजन, यू डू मायोमेक्टमी द वे यू डू इट, एंड आफ्टर दैट यू क्लोज द डेड स्पेस। सिरोजा को जितनी खूबसूरती से बंद कर सको वो बेहतर है। टेनिस बॉल सूचरिंग इसके लिए बेस्ट समझी जाती है, वो टेनिस बॉल सूचरिंग कर लो। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व इस केस के अंदर तो डेफिनेटली यूट्राइन कैविटी विल बी ओपन, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि एक फिगो की ऐसी स्टेज पे था कि पता नहीं 2 स्टेज बोली थी मैंने क्या, कि वो एक 2 स्टेज है, 1 स्टेज फिगो है, विच मीन्स सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, और बाकी वो ऊपर है। तो अगर अगर तो वो अंदर है तो डेफिनेटली फिर आपको कैविटी ओपन करके वो निकालोगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। एंड then sometimes you have a patient who totally before surgery who says that she doesn't want her cavity to be opened,
तो फिर सब म्यूकोजल फाइब्रोइड आप रिसेक्टोस्कोप से भी निकाल सकते हो, एंड देन यू रिमूव ऑल द अदर फाइब्रोइड फ्रॉम द एब्डोमेन। तो बट ऑब्वियसली इट्स बेटर कि एक ही दफा में अगर कर रहे हो तो वो ओपन करके आपने सब म्यूकोजल भी निकाल दिया और सारे निकाल दिए, सूचरिंग अच्छी कर ली, और डाइट ऐसा आपने लेप्रोस्कोपी में कर लिया हुआ था, सो यू नो दैट, और फिर आपने उसको बंद किया। एंड वेन एवर यू डू यूज डाई इन अ पेशेंट, यू ऑलवेज डू वॉश इट thoroughly, यानी कि वजाइना से ही विद रूबिन्स कैनुला जिससे डाई गुजारी थी उसी से आप सेलाइन अच्छी तरह गुजारते हो, बिकॉज डाई इज अनस्टेलाइज्ड थिंग एंड यू ऑलरेडी डूइंग अ मैसिव सर्जरी, तो वो अच्छी तरह वॉश हो जानी चाहिए, क्योंकि कई दफा उस डाई की वजह से डिजीज बन जाती है। So this is excuse me, this is how you do myomectomy, और because you have used the vasopressin तो आपका blood loss कम से कम हो गया, and at the end बिल्कुल hyaluronic acid की option बिल्कुल मौजूद है। Unfortunately it's not easily available nowadays, number one, number two, if it is available it's very very expensive। कई दफा जितनी टोटल फार्मेसी है, जितनी टोटल सर्जरी का खर्चा आ रहा होता है, उतनी टोटल कॉस्ट hyaluronic acid का पेशेंट का आ रहा होता है। So the thing is ke, but again, it is recommended that if you spill hyaluronic, and I have seen it practically also, कि अब but again post operative adhesions के का कई factors पे affect होता है, जैसा कि पेशेंट का अपना रिस्पॉन्स टू द सर्जरी होता है, जो कि adhesions बना सकते हैं, आपकी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, आपका इंसिजन, सूचरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, पेशेंट की बात की केयर, उसने अपनी कितनी केयर की, कोई इन्फेक्शन ना करा लियो, तो फिर वो adhesion ज्यादा करे, बट अगेन कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड लीड्स टू वेरी लेस डिजीज। जी। मैडम डेक्सा जो है वो भी डाल सकते हैं अगर जैसे आप लोग छोटे सेटअप पे कर डेक्सा रहे हैं। नो, जी डेक्सा नहीं, डेक्सा का बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं सुना। जो चीजें मैंने सुनी है ना, जो ये पेपर्स में आई हुई है, इसमें आर्टिकल्स में, और एविडेंस बेस्ड है, उसके अंदर हाइल्यूरोनिक एसिड का रोल है। कुछ जगहों के अंदर उन्होंने ये जो सर्जिसेल और फिब्रिलार, ये जो एंटी, ये जो 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 ऊजिंग को रोकने के लिए हम चीजें यूज करते हैं, ब्लड वेसल्स को बंद करने के लिए, तो उसके उनको भी एंटी एडहेसिव कहा हुआ है कई जगहों पे। मैडम जैसे आप ट्रांजामीन भी सर्जिसेल ड्रग के ऊपर कर दो। जी जी फरा, मैडम ठीक है। ट्रांजामीन भी हम यूज कर सकते हैं ट्रांजामीन इंट्रामायोमेट्री। तो यस, ट्रांजामीन दे सकते हैं, बट वेरी फ्रैंकली ट्रांजामीन कोई मैसिव ब्लीडिंग को कम नहीं करेगा, बट वेजोप्रेसिन मैंने आपको बताया कि 70 to 80% आपके ब्लड लॉस को कम करता है। बट अगेन बार बार कहूंगी, जैसे हम स्किन पे या डिलीवरी के वक्त लोकल का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और हम बार बार चेक करते हैं एस्पिरेट करके कि ब्लड वेसल के अंदर तो नहीं लग रहा, इसी तरह वेजोप्रेसिन हैज टू बी गिवन इंट्रामायोमेट्रियल, कैन नॉट बी गिवन, वी कैन नॉट गिव इट इंट्रावेस्कुलर। इसी तरह आपने एस्पिरेट करके चेक करना है कि इट इज नॉट इंट्रावेस्कुलर, बिकॉज इफ इट इज इनसाइड द वेसल देन इट कैन लीड टू मोर्टेलिटी एज वेल, राइट? सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वेसल के अंदर ना लगा देना। मैंने जो सारी चीजें की बोली हैं वो सारा कुछ आपके वीडियो पे भी आ जाएगा, एंड देन यू कैन सी इट अगेन, ठीक है। मैम ये टेनिस बॉल स्विचरिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दें किस तरह होती है? टेनिस बॉल सूचरिंग बड़ी आसान होती है, इनसाइड आउट होती है। ये पता नहीं, मेरी किसी वीडियो में भी शायद होगा यूट्यूब पे, सर्जिकल सर्जरी की जो मैंने थोड़ी डाली हुई है, वैसे मैं कोशिश करूंगी और भी डाल दूं। तो अब मैं इस वक्त जुबानी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ये होता मैम है कि जो दो मार्जिन स्विचरिंग होते हैं की ना, जैसे सारी ये दो वीडियोस आप डाल दीजिएगा कि डिफरेंट टाइप के सूचरिंग, स्विचरिंग। ठीक है, वो आई ट्राई। मेरी तो थैंक ज्यादातर लेप्रोस्कोपिक होंगी वीडियोस, तो वही मैं डालूंगी। उसके अंदर भी टेनिस बॉल सूचरिंग की जाती है, चाहे आप लेप्रोस्कोपिक में करो। उसमें आप अंदर से बाहर जाते हो, फिर दूसरे में अंदर से बाहर जाते हो। जैसे ये दो मार्जिन है ना, तो इसमें अगर आपने इस मार्जिन में जाना है तो अंदर से बाहर जाओगे, ये बाहर नीडल निकली हुई है, फिर जो इस मार्जिन का भी आप अंदर से बाहर जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक हाँ। तो इससे ये होता है कि सारा जो आपका सूचर है ना, जैसे वन का वाइक्रल जो आप यूज कर रहे हो, वो सारा बेरी होता जाता है, वो बाहर की तरफ नहीं आता, वो सारा अंदर की तरफ आता है। तो जब सूचर बाहर की तरफ नहीं आएगा तो वो फिर एडिशन नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। फिगर ऑफ 8 या इंटरप्टेड हम लगाते हैं इंट्रामायोमेट्रियल, मायोमेट्रियल या डेड स्पेस के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप करोगे, लेकिन मैं बार बार बताऊंगी, कहूंगी कि इसके लिए आपका थोड़ा सा लेप्रोस्कोपिक स्किल्स, लेप्रोस्कोपिक एनाटॉमी, शायद बहुत साल जब आप सर कर लेते हो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिर आपको वो एनाटॉमी पता चल जाती है, ताकि अगर आप इंसिजन छोटा करना चाह रहे हो
वरना अगर देर आर बिग देर फाइब्रोइड्स और आप बड़े इंसिजन से कंफर्टेबल हो तो फिर आप बड़ा इंसिजन दे दो, फिर आप छोटा इंसिजन करके अपनी जिंदगी मुसीबत में करके पेशेंट को कॉम्प्लिकेट करोगे, फिर आप बड़ा इंसिजन दे दो। Hysteroscopy, laparoscopy before myomectomy is useful only if you know the anatomy well, if you can if you have a practice of removing big fibroids with a small incision, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े इंसिजन से भी कर रहे हो तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ब्लीडिंग कम करने के, और जो मैंने आपको एडिशंस कम करने के स्टेप्स बताए, वो तो आप उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगेन बार बार मैं यही कहूंगी कि मायोमेक्टमी इज नॉट ओनली जस्ट रिमूविंग द फाइब्रॉइड्स। Myomectomy is actually success of myomectomy is that patient if comes back to you again and if she's pregnant, that is really great, और या फिर मिनिमल एडिशंस के साथ, तो वो है। तो इस तरीके से ठीक है। और अगर आपके सेटअप में हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी नहीं है तो दैट्स ऑल राइट। फिर आप अपने बाय में, अच्छा जिन जिन जगहों पर नहीं होती, दे आर वेरी गुड एट बायोमैनुअल एग्जामिनेशन ऑल्सो। बायोमैनुअल पे आप मोबिलिटी असेस कर लेते हो, मोबिलिटी के बाद आप अपनी इंसिजन अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हो, और ओपन करके बिफोर ओपनिंग द कैविटी और बिफोर ओपनिंग द यूट्रस, जैसे लुबना ने उस टाइम पे डाई टेस्ट किया था, आप उस टाइम पे भी डाई टेस्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन परफॉर्म मायोमेक्टमी इन द सेम वे एज आई टोल्ड यू बिफोर। और उसके बाद आप उसका अब इन सारी चीजों में पोस्ट ऑपरेटिवली क्या है, एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपकी यूट्राइन कैविटी ओपन हुई है तो फिर आपने 3 मंथ्स नहीं 6 मंथ्स के बाद डाई टेस्ट करना है, और 6 मंथ्स के बाद ही पेशेंट को प्रेग्नेंट होना अलाउ करना है। अगर यूट्राइन कैविटी नहीं ओपन हुई तो 3 मंथ्स के बाद डाई टेस्ट एंड फर्टिलिटी की फर्दर फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है। सो द थिंग इज दैट अगर कैविटी ओपन हुई है तो फिर आप 6 मंथ्स तक यू कैन इवन डिस्चार्ज पेशेंट विद कॉन्ट्रासेप्शन, ताकि वो पॉलिसी से भी उसकी कंसेप्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द स्कार इज नॉट फुली हील्ड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, और ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट होकर एक रप्चर के साथ आ जाए। तो इसलिए आपने उसको इसको इसी तरह से गाइड करना है। और जब एग्जाम के अंदर आप बोल रहे होगे तो आपने अपनी हर चीज आसान रखनी है। अगर तो आपको एग्जामिनर ने स्कैन के ऊपर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर नहीं दिया, और जैसे मैंने तो आपको यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड दिया था ना, अगर एग्जामिनर ने आपको यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड नहीं दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग अप योर कैविटी, यूट्राइन कैविटी इन द एग्जाम ऑल्सो। आपको यूट्राइन कैविटी नहीं खोली, मेरे पेशेंट की ट्यूब्स पेटेंट थी इंट्राऑपरेटिवली। So however 3 months के बाद again before proceeding for the further future fertility or future plan, मैं उसको ऑफर कर दूंगी कि सर्जरी की वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, तो फ्यूचर फर्टिलिटी मेडिसिन या कुछ भी लेने से पहले ट्यूबल पेटेंसी हम चेक कर ले। तो ट्यूबल पेटेंसी वहां खुद ही बोल देना है कि ट्यूबल पेटेंसी ठीक है उसकी। सॉरी मेरा फोन में, सॉरी। सो मैं आपको बताई थी कि ठीक है, तो आपने खुद से उस चीज को आगे लेके जाते जाना है। कि आपने कहना है 3 मंथ्स के बाद भी, क्योंकि मैंने तो रीजन्स का इतना ख्याल किया वो सब किया, सो हर ट्यूब्स आर पेटेंट इवन नाउ। और फिर 3 मंथ्स के बाद मैंने इसका ओवुलेशन इंडक्शन दिया और इसे कंसीव कर लिया फॉर अपने अपने केस को, बिकॉज वह एग्जाम में टाइम भी कम होगा, जितना जल्दी है खत्म भी करना है और सक्सेसफुल भी बनाना है। अच्छा एक और किसी ने कुछ क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा देखो, अगर आपने, अच्छा एक चीज और, अच्छा एग्जाम में अब क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं मायोमेक्टमी के लिए? अगर वो कहें कि व्हाट आर द मेजर्स यू विल टेक टू रिड्यूस ब्लड लॉस, तो मेजर्स एक्चुअली स्टार्ट हो जाएंगे प्री ऑपरेटिवली अगर जीएनआरएच एनालॉग्स कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड एंड इट कैन रिड्यूस द ब्लड फ्लो और इट कैन रिड्यूस ब्लड लॉस इंट्राऑपरेटिवली, अगर आप प्री ऑपरेटिवली जीएनआरएच एनालॉग्स हो गए। लेकिन जीएनआरएच एगनिस्ट, सॉरी, वो जो आप दे रहे हो अब जोलोटेक्स जो है, उसको देने का तरीका भी पता होना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर भी पता होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स भी पता होना चाहिए, उसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड एंड इन 6 मंथ्स इट कैन रिड्यूस मोर देन 50% ऑफ द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, बट द मोमेंट यू विल स्टॉप जीएनआरएच, वो उसके फौरन बाद ही साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, फाइब्रॉइड का। इट विल कम बैक टू द सेम साइज इन द मोमेंट यू विल स्टॉप जीएनआरएच। ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है उसका, बट इसका सर्जरी में क्या फायदा होगा? इट कैन रिड्यूस द ब्लड लॉस, इट कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, बट नुकसान क्या होगा इंट्राऑपरेटिवली? ये प्लेन ऑफ द फाइब्रॉइड खत्म कर देता है, आपको प्लेन ही नहीं मिलता कि वो पूरा का पूरा फाइब्रॉइड कैसे निकलेगा। और उस प्लेन के खत्म हो जाने की वजह से सर्जरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज ये कि एट टाइम्स आपको
उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस ऐसी आ जाती हैं जीएनआरएच की वजह से, क्या सार्कोमा और नॉर्मल मायोमा में फर्क ही नजर नहीं आता इंट्राऑपरेटिवली, तो वो भी एक बड़ा डेंजरस बात हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सार्कोमा और मायोमा इंट्राऑपरेटिवली। तो बस ये तो फिर, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट हैज गॉट लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ देम। If you give it more than for six, it is not recommended to be given more than 6 months, ये दिया देना अलाउड भी नहीं है उस तरीके से। तो जीएनआरएच का ये रोल, फिर ब्लड लॉस कैसे कम होगा, वेसोप्रेसिन से, टोर्निके से, और कुछ लोग यूट्राइन आर्टरी को भी पकड़ लेते हैं उससे, तो इस तरीके से आपका होगा। बट आई एम टेलिंग यू, हर एक का अपना स्टाइल होता है माइमेक्टमी का। हु आर स्किल्ड इनफ हैव गॉट अमेजिंग वेज टू डू इट। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, बिकॉज अब हर चीज मॉडर्नाइज हो चुकी है। वी हैव गॉट हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स दैट। तो अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी को यूज करते हुए इस चीज को लेकर चलो तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, एक तो। दूसरी चीज ये कि आपका जो है, देन अगेन, अब वेसोप्रेसिन इज अवेलेबल, तो व्हाई नॉट यूज इट। पुराने तरीके भी बहुत, जिनके हाथ चले हुए हैं, दे हैव गॉट मैजिकल हैंड्स, आई एम श्योर दे डू इट वेल, बट अगेन, और फिर एडिशंस बनने का बहुत सारी चीजों में रोल होता है। देर इज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू वेज टू गो विद द वर्ल्ड, मॉडर्न तरीके अपनाए, और जितना छोटा इंसिजन हो वो बेहतर है। पेशेंट को बार बार सर्जरी के लिए ना आना पड़े, इट इज बेटर। जी नाजिश। मैडम ये जो है ना, अब जैसे एग्जाम में हम जो है वो हमसे फर्दर ऑप्शंस पूछ। हम्म। जी नाजिश, आवाज कट गई। मैडम ऑप्शंस ये किस जो चीज की? मैडम हम्म। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हम हीमोस्टेसिस को सिक्योर करने के लिए और ब्लड लॉस को कम करने के लिए कुछ हम टेक्निक्स यूज करते हैं, वो मैंने कंपाइल करी है, वो मैं आपको बताऊं। जी बताइए। पूछती है ना, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि जैसे ये खाना मैडम जो हम एम्बोलाइजेशन है? सबसे पहले तो हम जीएनआरएच एनालॉग्स जो है वो 3 to 6 मंथ्स के लिए दे सकते हैं। और जो दो न्यू एफडीए अप्रूव्ड चीजें आई हैं, उनमें एक है ओरल जीएनआरएच एनालॉग्स, जिसका नाम है एलागोलिक्स, जिसमें जो है आ ना गया, हमारे पास। पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी। और दूसरा जो है ना यूलिप्रिस्टल एसीटेट, जो कि हम उसमें ये इमरजेंसी अवेलेबल नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन। पाकिस्तान में। जी, ये हम यूज कर सकते हैं। और मैडम इसके अलावा जो है ना, इंट्रा ऑपरेटिवली जो है ना, हमने मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग और डाइसेक्शन करनी है, मेंटेन गुड हेमोस्टेसिस। और हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हम बोनीस क्लैंप यूज कर सकते हैं, वेजोप्रेसिन यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल अलावा ठीक है। फाइन सुचर्स को यूज करना है। और एडिक्वेट गुड। अप्रोक्सीमेशन होनी चाहिए, जिसमें प्रेफरेबली हम जो है ना बोनीस फ्लैप टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि ट्रांसवर्स इंसिजन के लिए होती है। और इसके वेरी अलावा गुड। मैडम इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्जी जेल जो है वो सुचर्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, उससे एडियंस कम होती हैं। और अगर हम सर्जी जेल, सर्जी जेल कौन से सूचर्स पे आप अप्लाई कर रहे हो? मैडम ये जेल की तरह होती है, और ये जो इंसिजन साइट होती है ना, उसके ऊपर कोटिंग कर देती है, और उससे जो है ना ये आप एडियंस नहीं होती। इंट्रापेरिटोनियल पे अप्लाई करते हो या सिर्फ स्किन के इंसिजन्स के लिए? नहीं मैडम, इंट्रा ऑपरेटिवली इस यूट्रस का जो इंसिजन होता है ना, उसके ऊपर ठीक अप्लाई है, कर सकते हैं। ये आप चेक कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द सर्जी जेल। मुझे ये पता है कि वो स्किन के ऊपर अप्लाई होती है, बट हो सकता है कोई ऐसी जेल हो जो उसके ऊपर अप्लाई होती हो, एंड इफ इट इज अवेलेबल ऑल्सो, ये जी देखना मैडम। पड़ेगा, इसका मुझे नहीं आइडिया। मैं ठीक है। शॉज मैम मैं शॉज में लिखा हुआ है, ऑपरेटिव शॉज में। लेकिन वो बोलो ना जो पाकिस्तान में, देखो थ्योरी तो आप कर आए हो पास, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, यूली क्रिस्टल आप मेंशन कर दो, बट इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना। आपका जो टॉक्स है ना, वो सारे हैं इस वक्त पाकिस्तान के ही पेशेंट पे, और वहीं पे क्या आपके सेटअप। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दो सेटअप्स का बताऊंगी तरीका माइमेक्टमी का, एक जहाँ लेप्रोहिस्ट्रो मौजूद है, एक वहां जहाँ जो नहीं मौजूद, और एक तीसरी भी कि लेप्रोहिस्ट्रो में भी जो एक्सपर्ट है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। कोई भी पकड़ के इस तरह नहीं, जिसने बहुत सारी की हो वही छोटे इंसिजन को कन्वर्ट कर सकता है, जिससे लेप्रोस्कोपी का फायदा होगा। अगर नहीं कर सकते तो आप ओपन करके डाई टेस्ट करके भी उतना आप कर सकते हो, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। सो हर सेटअप का अपना आपको पता होना चाहिए, अपने रिसोर्सेस का, अपने स्किल्स का भी। जो चीज अवेलेबल नहीं है वो सारी, ये रीसेंट एडवांसेस की बातें कह लो, ये जो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सर्जी जेल है, यूली प्रिस्टल है, वो चीजें
तो पाकिस्तान में जेल अवेलेबल है, लेकिन वो तो सिर्फ स्किन वाली जेल अवेलेबल है, जो मैंने ग्लू है वो, आई थिंक कोई सम ग्लू के नाम से। तो वो स्किन इंसिजन्स पे लगा देते हैं, उसमें फिर सूचर नहीं लगाना पड़ता। तो वो अवेलेबल है। मुझे इंट्रापेरिटोनियल वाली मैंने ना सुनी ना देखी, बट यू नेवर नो, अगर है तो फिर ठीक है। वरना इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है। अच्छा मैडम, हम ये डिफरेंट सिनेरियोज कर लें फाइब्रॉइड के साथ, सिर्फ मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और क्या सिनेरियो, हमने लास्ट टाइम एचएमबी और वो तो कर लिया था। आई थिंक फरा क्वेश्चन पूछा चाह रही थी डिफरेंट ऑप्शंस की इस पेशेंट में। मायोमेक्टोमी इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 2 इज के, अगर जहां तक कुछ लोग कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, फर्टिलिटी वाले पेशेंट में हमारे गायनी के कोई गाइडलाइन नहीं ऐसा कहती कि जो फर्टिलिटी के पेशेंट में आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सिंगल फाइब्रॉइड के अंदर यस इट कैन लीड टू लेटर ऑन प्रेगनेंसी, मे बी फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाए, लेकिन प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो फिर ऑब्स्टेट्रिशियंस को ही पता है। या वो एक रीटा होती है, या वो मिसकैरेज होता है, या वो आईयूजीआर होता है, या वो प्रीटर्म लेबर होता है। असल में हमने पेशेंट को सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं करना होता, हमें हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर चाहिए होता है। तो इस वजह से शायद अभी तक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फर्टिलिटी के पेशेंट्स में इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं आई। ना ही हमें कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन मिली है। तो हमारे लिए फर्टिलिटी के पेशेंट में या यंग पेशेंट में जिसने आगे कंसीव करना हो, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इनिशियली इज दिस थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, इज सर्जरी। एंड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऐसे पेशेंट में ठीक है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, तो उसके अंदर इट्स ओके। अच्छा, दूसरी और डिफरेंट सिनेरियोज जी लुबना, और एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट is, for example, 40 years of age or 38 years of age, and she comes to you with a fibroid, with a report of fibroid, which is 7 into 8 centimeters, but it's not causing any symptoms. क्या ओके करोगे? मैडम, मैनेजमेंट। ओनली मैनेजमेंट और हिस्ट्री एग्जामिनेशन। ओनली मैनेजमेंट, हिस्ट्री हमने कर ली है, ओके टाइम भी कम है। मैडम, जी, मैडम पेशेंट की पैरिटी क्या है, 40 है? पैरिटी उसकी पूरी है, पैरा 3 है, प्रीवियस एसवीटीज है। Okay, then madam, I will counsel my patient that she is having a fibroid that is a asymptomatic fibroid, and most of the female, the 50% of the cases, the fibroid causes no symptoms. If the fibroid is asymptomatic, has nothing to do with my patient, then I will counsel her that there is a no need of the surgery. But I will keep her in follow up. Then after 6 months of the follow up, I will again assess the size of the fibroid. एनीवन, कोई और? Madam, I will counsel my patient as the fibroid is asymptomatic, so she should have 6 monthly ultrasound scans and to check for the increase in the size of the fibroids, and also if there are any symptoms arise at any time, then she should report immediately. Otherwise, she should monitor it through 6 monthly ultrasound scans. ठीक है। अच्छा देखो, बात यह है कि आपकी बात सबकी ठीक है। एसिम्टोमेटिक के अंदर हम यही कहते हैं कि ईयरली फॉलो अप कर ले या 6 मंथली कर लो। 6 मंथली बड़ा जल्दी है, चलो ईयरली भी कर लो। इट इज एसिम्टोमेटिक। एक बात आपने सबसे पहले से बतानी है कि देर इज लेस देन 0.1% चांस दैट यू गेट malignant, ठीक है। तो इसलिए उस ईयरली फॉलो अप, अगर कहीं पे उसको रैपिड इंक्रीज इन साइज मिला, या उसको सिम्टम्स कॉज होना शुरू हो गए फाइब्रोइड से लेकर, या फिर उसके स्कैन पे कोई डिजेनरेटिव चेंज डेवलप होना शुरू होता है, शी कैन कम बैक टू यू एंड गेट इट रिमूव्ड। लेकिन अब इसके अंदर आप देखो, साइज काफी बड़ा दिया है मैंने आपको, 7 into 8 सेंटीमीटर। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है। इसमें आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि साइज इज ऑलरेडी बिग। सो अगर हम अभी 6 महीने या साल का वेट करेंगे तो साइज और बिग होगा, तो उतनी ही मैसिव सर्जरी हो जाएगी। और इतना बड़ा साइज अगर और भी बिग हुआ तो वो बहुत बुरे सिम्टम्स भी कर सकता है, जैसे यूरिनरी रिटेंशन या डिफेकेशन का प्रॉब्लम या एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये भी हो सकता है कि 7 into 8 सेंटीमीटर फाइब्रोइड जो है वो बड़ा होके ब्रॉड लिगामेंट के अंदर जाना शुरू हो जाए, या कुछ हो। सो इफ देयर इज अ वेरी वेरी बिग फाइब्रोइड, इवन एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन ऑफर हर माइमेक्टमी, और यू कैन ऑफर हर योर, इसमें तो फैमिली कंप्लीट है। शी इज 38, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। सो आप उसको फर्स्ट नंबर पे भी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कह सकते हो इसके। सो आप कह सकते हो, मैंने जानबूझ के इसमें बढ़ा दिया था। अगर ये 4 into 5 या छोटा होता, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट साइज के किस पे आप बड़ा कहोगे।
या आपकी अपनी परसेप्शन है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है? कई दफा 7 into 8 सेंटीमीटर एब्डोमेन के ऊपर लिटरली अम्बिलिकस तक भी आया होता है फाइब्रॉइड। सो यू कैन जस्ट, क्योंकि अगर आप उसको फिर घर भेज रहे हो और साल बाद बुला रहे हो, 6 माह बाद, और वो और बड़ा होगा, तो क्या वो एपिगैस्ट्रियम तक ही ना पहुंचा हो ना, तो फिर तो कितनी मैसिव सर्जरी होगी। So you will explain to her that the size is already big, although it's causing no symptoms, number one. Number two, it is not malignant and it has got very, very less chances of getting malignant. Number three के, लेकिन अगेन अगर हम नहीं करेंगे तो ये बहुत रैपिडली मजीद इंक्रीज कर सकता है, फिर ज्यादा मैसिव सर्जरी होगी। सो यू कैन टेल प्रोज एंड कॉन्स टू द पेशेंट एंड लेट हर डिसाइड इफ शी वांट टू गेट इट रिमूव और नॉट, रिमूवल या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा साइज है, Okay. सिम्टोमेटिक है, फिर भी तो देखना ना क्या करना है। मैम अगर यही तो पेशेंट डॉक्टर अरूबा, आपने अपने अगर ये प्रीवियस वाली स्कैन के पेशेंट साथ और इसके प्रीवियस स्कैन पे जो फाइब्रॉइड का साइज था वो 4 into 5 था, और अब वो आई है कि 7 into 8 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड के साथ, फिर भी तो हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए ना, कि हमें पता है कि ये डेफिनेटली बढ़ वो रहा तो फिर बढ़ा कर आई ना, फिर तो ऑब्वियसली फॉलो अप पे अगर साइज बढ़ गया है, फिर तो यू हैव टू रिमूव इट। हम्म, मैम मल्टीपल फाइब्रॉइड के साथ अगर फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे? मल्टीपल फाइब्रॉइड्स विद फर्टिलिटी का ही तो सिनेरियो भी आज हमने किया है, उसमें तो फिर आपको माइमेक्टमी करनी होगी ना। अच्छा, उसके अंदर एक तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। दे से दैट नन ऑफ द फाइब्रॉइड इज इंडेंटिंग द कैविटी, बट दे आर मल्टीपल एंड द कैविटी इज स्मूथ और वो सारा कुछ। तो फिर उसके अंदर एक बात होती है कि देखें, अगर 8 married for 8 years फॉर एग्जाम्पल हो गई एंड शी हैज गॉट मल्टीपल फाइब्रॉइड्स एंड नन ऑफ द फाइब्रॉइड्स वर इंडेंटिंग द कैविटी, तो उसमें तो फिर आप अगर इन सारे फाइब्रॉइड्स का साइज मिला के 4 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है, तो इट्स बेटर टू गेट इट देम रिमूव। क्योंकि शी इज मैरिड फॉर 8 years, अगर अब तक उसे कंसीव करना होता विद द ट्यूबल पेटेंसी, गुड ट्यूबल पेटेंसी, तो फिर वो अचीव कर लेती। अगर अभी भी नहीं किया एंड देयर इज नो अदर कॉज ऑफ फर्टिलिटी, देन इट्स देयर इज नो हार्म टू रिमूव द फाइब्रॉइड्स एंड देन गो फॉर द फर्दर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर उन सबका साइज मिला के 4 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर आप उसके फर्दर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे जा सकते हो, जैसे कि आईवीएफ या फिर आईयूआई या जो भी। तो उसमें फिर ये भी होता है। लेकिन अगर कोई एक भी फाइब्रॉइड है, इट इज इंडेंटिंग द कैविटी, तो फिर इट हैज टू बी रिमूव बिफोर यू गो फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, यस मैम। सो गुड। और किसी का कोई और सिनेरियो आपने देखा हो? Then we have fibroids in postmenopausal. उसमें क्या करेंगे? I have seen a patient postmenopausal who was above 80 and had a huge fibroid. It was a very, very rare thing to see. Initially, we thought it had to be sarcoma or carcinoma at that stage. But luckily, it was not. Intraoperative look was also. It is a very, very rare thing. और खैर उसमें because it was single, so it was done laparoscopically without spillage, yellow bag यूज करके। बट द थिंग इज के ऐसे केस में अगर इफ यू डोंट हैव, वही बात है, रिसोर्सेज और स्किल्स अगर नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपने ओवर नहीं होना होता, अपने पेशेंट सेफ्टी पहले देखनी होती है। इट्स ऑलवेज बेटर टू ओपन दिस पेशेंट एंड देन रिमूव इट। इस पेशेंट के अंदर हिस्टेक्टमी ही हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली इट हैड दैट लुक, बट बायोप्सी पे इट केम आउट टू बी मायोमा। मैम तो बीएस मैम इसमें तो बीएस फिर तो बीएसओ करेंगे भी ऐसे करेंगे ना? फाइब्रॉइड में? सॉरी, मैम बीएस तो करेंगे ऐसे फाइब्रॉइड में पोस्ट मेनोपॉजल में? पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर तो मेरा ये ख्याल है, देखो वही बात है, अगर देर इज अ फाइब्रोइड एंड नॉर्मली पेशेंट्स या तो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेंगी, उसके अंदर आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग तो करनी है एंड देन यू डिसाइड फॉर द बीएसओ। बट मोस्टली इन पेशेंट्स के अंदर, जो ये वाली तो खैर बहुत ही रेयर केस था, ये तो बहुत ज्यादा आगे एज में मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मली पेशेंट्स 53-54 में प्रेजेंट करती है, दे नेवर हैड मेनोपॉज। उनका एक्चुअली ब्लीडिंग का पैटर्न कंटिन्यू हुआ होता है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेनोपॉज कब हो गया, क्योंकि फाइब्रॉइड्स होते हैं और ब्लीडिंग होती रहती है, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक सी स्टेट बनी होती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत लेट मेनोपॉज जो है वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसके अंदर बेशक आप बायोप्सी भी करो तो वो भी ठीक होती है, बट देन ये जो इसमें फाइब्रॉइड्स इस किस्म के और इस एज तक जा रहा हो तो उसके अंदर, लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी ठीक है एंड यू हैव फाइब्रॉइड्स, तो फिर आप ओवरीज ना भी निकालो, आप सिर्फ यूट्रस निकाल लो। लेकिन द थिंग इज के अगर आपके साथ बायोप्सी में कुछ हाइपरप्लेजिया या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर तो टीएलएच बीएसओ ही होगी ना। डॉक्टर अरूबा, मेरा एक और क्वेश्चन था
कि इसी तरह जो पेशेंट की मायोमेक्टमी हुई है और उसके साथ जो एंडोमेट्रियल कैविटी है वो भी पेटेंट थी ना उसकी इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स में, लेकिन पेशेंट विद इन 3 मंथ्स कंसीव करके आ गई है। अब हम उसका मोड ऑफ डिलीवरी उसके साथ क्या डिस्कस करेंगे? हम उसको स्पॉन्टेनियस का ट्रायल देंगे अगर वो विद इन 3 मंथ्स आ गई है? अगर उसकी यूट्राइन कैविटी ओपन नहीं हुई और 3 मंथ्स में उसकी कंसेप्शन हो, 3 मंथ्स के बाद उसने जब भी कंसीव किया बट यूट्राइन कैविटी वाज नॉट ओपन, तो आप उसको नेचुरल का ट्रायल दे सकते हो। अगर उसकी यूट्राइन कैविटी ओपन हुई है 6 मंथ्स तक, शी शुड नॉट कंसीव। 6 मंथ्स के बाद आप उसका कंसेप्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। एंड इफ शी कंसीव्स एनी टाइम आफ्टर 6 months, even if the cavity was open, you are not cavity was opened, or if cavity was opened, you can never give her trial of labor. You will go for the cesarean section. In other words, टाइम से ज्यादा कैविटी ओपन नॉट ओपन मैटर करता है। कैविटी ओपन हुई, नो ट्रायल ऑफ लेबर। कैविटी ओपन नहीं हुई, यू कैन ऑफर हर ट्रायल ऑफ लेबर। ओके, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। सो ठीक है, तो इस तरीके से। और बाकी तो बस इन्हीं चीजों की क्लैरिटी पे डाई टेस्ट पे क्वेश्चन होता है कि आप डाई टेस्ट क्यों कर रहे हो जब आपने बाद में डाई टेस्ट करना है। तो उसका फिर यही आंसर होता है कि एक तो आपको एट द टाइम ऑफ सर्जरी ट्यूबल स्टेटस का पता चल जाता है। दूसरा, डाई टेस्ट खोलने का एक फायदा और भी होता है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सर्जरी एंड यू एंड अप इन ओपनिंग द यूट्राइन कैविटी, तो ब्लू कलर की कैविटी से भी आपको पता चल जाता है कि ओपन हो गई है। सो इट हेल्प्स यू इन दैट वे ऑल्सो। बट इवन इफ यू डोंट डू द डाई टेस्ट, उसकी भी अपनी जस्टिफिकेशन है। उसकी जस्टिफिकेशन है कि मैं क्यों अनस्टरलाइज चीज कैविटी में डालूं और सर्जिकल फील्ड में लेके आऊं। मैं बाद में करना ही है 3 महीने या 6 माह के बाद डाई टेस्ट, तो मैं तभी करूंगी। मैं फिर अभी अभी ना करूं और कैविटी तो ओपन होएगी, तो वैसे भी एंडोमेट्रियम से पता चल जाता है। सो बोथ वेज यू कैन जस्टिफाई। बेसिकली आपने करना वो है और बोलना वही है जो आप कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, और जो आपके डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जहां फंसो यही सोचो कि वहां पर क्या करते हैं, डाई टेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो फिर वो क्यों करते हैं, तो आप अच्छा, दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन था मैडम कि अगर हम्म किसी पेशेंट का उसके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी खराब है, उसका अपना एएमएच भी कम है ना, और हमने पेशेंट का हम्म आईवीएफ डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको फाइब्रॉइड थे जो उसके एसिम्प्टोमेटिक थे, तो क्या हम उसको रिमूव करेंगे? अगेन, अगर वो फाइब्रोइड स्कूल में, अगर तो इंडेंटिंग द कैविटी है, यस, आईवीएफ कैन नॉट बी डन विद अ फाइब्रोइड इंडेंटिंग द कैविटी। अगर वो इंडेंटिंग द कैविटी नहीं है, सारे बाहर की तरफ है, देखो उसका एक ही जिंदगी का चांस अब आईवीएफ का होगा। बार बार वो आईवीएफ भी नहीं करा सकती विद दिस लो एएमएच। तो अगर उन सब फाइब्रॉइड्स को मिला के साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बनता है, तो इट्स बेटर टू रिमूव द फाइब्रॉइड्स फर्स्ट एंड देन गो फॉर आईवीएफ। इस दौरान ये भी हो सकता है कि फर्दर एएमएच ना लो हो जाए, पहले आप इसके एग्स निकाल के एम्ब्रियोस फ्रीज कर लो, फिर मायोमेक्टोमी करके एक दफा यूट्रस को हीलिंग का टाइम दो और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। क्योंकि एएमएच पहले ही लो है। ऐसा ना आप मायोमेक्टमी और उन चीजों में और उसका टाइम वेस्ट कर दो और कल को एग भी ना बने। ठीक है ना? सही है। अच्छा, और दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन करना था कि अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है और उन्होंने हमें साइज दिए हुए हैं, तो कितने साइज का फाइब्रॉइड जो होता है वो हमें एब्डोमिनली यूट्रस हमें पैल्पेबल होता है एग्जामिनेशन पर? ये देखो, नॉर्मली तो कहते हैं कि 12 वीक्स से बड़ी यूट्रस आपको एब्डोमेन पे फील हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 6 वीक्स की आपकी यूट्रस है, तो 6 या 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हो, तो दोनों को मिला के, कुल मिला के 12 से बढ़ जाएगा, तो आपको एब्डोमेन पे फील हो जाएगा। तो इस तरह से ही है तकरीबन। बट देयर इज नो हार्ड सही एंड है। फास्ट थिंग कि इतने से बड़ा फाइब्रॉइड हो। यूट्रस का साइज होता है कि इतने से बड़ा हो तो फील होगा। सही। Assalamualaikum, और मैम। दूसरा मैडम, अगर हमने मायोमेक्टमी करनी है तो फाइब्रॉइड के साइज पे अगर वो 20 वीक तक साइज है, फिर हम उसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं उसकी कि नहीं कर सकते? Always remember, there is no particular size which is mentioned for, which is a landmark or which is a limit to perform laparoscopy. It's all your skills. आप 32 वीक्स का फाइब्रॉइड भी laparoscopically निकाल सकते हो। It all depends on your skills, your expertise। आपके पास मॉर्सिलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बिकॉज ऐसा ना बड़ा सा फाइब्रॉइड निकाल के बैठ गया, अब इसको एब्डोमेन से कैसे निकालें, क्योंकि आपके पास तो कोई मॉर्सिलेटर भी नहीं है। तो वो भी फिर तो इफ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द स्किल्स। बार बार कहती हूँ कि अगर स्किल्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना होता। पेशेंट की सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। डू व्हाट यू आर डूइंग, या आपके डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, जिसके स्किल्ड लोग आपके इर्द गिर्द भी मौजूद है, पेशेंट की सेफ्टी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।
कॉस्मेटिक्स और वो चीजें बाद में आती हैं, बट यस ये पेशेंट का राइट है कि उसे पता हो कि कॉस्मेटिक बेस्ट सर्जरी भी कहाँ पर हो रही है। सो इफ शी कैन अफोर्ड शी कैन गो देयर, और इफ शी कैन रीच दैट प्लेस। वरना जो हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, फिर आपने पेशेंट की सेफ्टी को सबसे पहले देखना है। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक सवाल था, पेशेंट इनफर्टिलिटी के वर्कअप के साथ आई है, ठीक है ना, उस पे सारी चीजें उसकी नॉर्मल आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड पे इंसिडेंटल फाइंडिंग आ गई फाइब्रॉइड है जो कि सब सिरोजल है, क्योंकि पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है प्रेशर सिम्टम्स की, कोई एचएमबी की हिस्ट्री नहीं है, इंसिडेंटल फाइंडिंग आ गई है, तो है तो उसका मल्टीपल फाइब्रॉइड है लेकिन सब सिरोजल है। ये बहुत ही अच्छा तो क्वेश्चन है। गुड। देखो सब सिरोजल फाइब्रोइड है, और ऐसे होता है पेशेंट। अब इसके अंदर दो चीजें मैं तो कहूंगी, इसके अंदर ओवरऑल सिनेरियो बड़ा मैटर करता है। एज ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मैं अरसे से मैरिड वो सिंस मैरिड 8 फॉर इयर्स, है, मैरिड सिंस उसके 8 ऊपर इयर्स। कितना, ठीक है, उसके ऊपर मैं सारे बताती हूँ, उसके ऊपर कितना सोशल स्ट्रेस है। इफ शी इज मैरिड फॉर 8 years बट शी इज 28 years ऑफ एज, राइट? तो यस। आप उसको, एंड शी इज, इवन इफ शी इज मैरिड फॉर 8 years, आप उसको कह सकते हो कि मैं आईयूआई या आईवीएफ का ट्रायल दे सकती हूँ। इफ फाइब्रॉइड इज नॉट लाइक वेरी वेरी बिग, अगेन 4 सेंटीमीटर कुल मिलाकर अगर नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो, क्योंकि शी इज वेरी यंग। और वही बात है, अभी मायोमेक्टमी करोगे तो कितनी और मायोमेक्टमियां वो कराएगी। ठीक है, अगेन अगर यही पेशेंट अगर 35 के करीब होती, बॉर्डर लाइन ओवेरियन रिजर्व की तरफ उसकी एज जा रही है, शी इज मैरिड फॉर 8 years, तो इट्स बेटर कि अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, बेशक सबसे रोजल है, 8 years मैरिड फॉर हो गई है, काफी ट्रीटमेंट्स वो ले चुकी है, ट्यूबल पेटेंसी उसकी चेक हुई हुई है, वो ठीक है, ओवुलेशन इंडक्शंस वो ले चुकी है, आईयूआई का बहुत फायदा तो होता नहीं है। तो आप इट्स बेटर कि आईवीएफ से पहले उसका फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर दो, और फिर उसका आईवीएफ परफॉर्म करो, ताकि मैक्सिमम सक्सेस के चांसेस हो। बट इसके अंदर आप पेशेंट के साथ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हो कि मैं मायोमेक्टमी करूंगी, जिससे चांसेस बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। और फिर विच 28 years old थी, उसके अंदर मैंने कहा कि आप इवन आईवीएफ भी कर सकते हो सबसे रोजल के अंदर, बिकॉज उसमें कितनी सर्जरियां आप मेनोपॉज तक मायोमास के लिए करोगे, एक तो। दूसरा ये कि अगर वो कंसीव कर जाती है विद फाइब्रॉइड, हाँ प्रोवाइडेड कि बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स नहीं है, अगेन ये कोई सबसे रोजल फाइब्रॉइड 7 into 8 centimeters नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है। कई दफा होता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो रही होती है, उसका बेबी भी हो जाता है, बट शी कम्स टू यू आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी के उसका तो अम्लाइकस तक वैसे ही मैस है। तो यस इट्स बेटर टू रिमूव दैट मैस बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, बेशक उसकी ट्यूबल पेटेंसी का, बिकॉज अगर वो अम्लाइकस तक के मैस के साथ कंसीव करेगी तो क्या वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सिनेरियोज देख के फैसला करना होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। जी मैम, सरा ने अगर बहुत आप कह अच्छा रही हैं क्वेश्चन किया था। जी 35 की एज है तो हम बेटर ये है कि हम उसकी मायोमेक्टमी करें और फिर आईवीएफ की तरफ जाएं, और अगर 28 और वो वीक्स भी की उस सूरत प्रेगनेंट। में सना, जी अगर सबसिरोजल फाइब्रोइड्स का साइज मिला के 4 सेंटीमीटर से बड़ा बन रहा है। अगर छोटा है फिर तो दैट्स ऑल राइट, एंड दे आर ऑल आर सबसिरोजल। अगर वो बड़ा, लेकिन अगर अगर बड़ा भी है थोड़ा सा, जैसे कि 5-6 सेंटीमीटर तक जा रहा है, बट शी इज वेरी यंग एंड ऑल आर सबसिरोजल फॉर श्योर, फिर आप उसको डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है ना? मैडम, आई पहले होप। ओवुलेशन इंडक्शन के लिए ट्राई तो करेंगे ना, अगर उसने नहीं दिया हुआ हुआ तो। ओवुलेशन इंडक्शन जो है ना, आप इसमें 35 में कह रहे हो, हाँ वो तो करके नहीं ही नहीं, आई है ना। 28। हाँ, अगर नहीं करके तो पहले उसको वो करेंगे, और फिर नहीं हाँ होता तो फिर भी ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि है सबसे रोजल, सर सबसे रोजल का निकालने का फैसला फिर आपने सिर्फ आईवीएफ से पहले ही करना है, बेशक 35 की है। ओवुलेशन इंडक्शन से पहले नहीं निकालने की जरूरत सबसे रोजल की। ठीक है ना? थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम ओवुलेशन इंडक्शन तो उन्हीं में देंगे ना जिनकी एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं, अगर वो ओवुलेट कर रही है और उसका सीरम। नहीं, अनएक्सप्लेन में भी आप ओवुलेशन इंडक्शन देते हो, इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ कंसेप्शन, नंबर वन। आईयूआई में भी ओवुलेशन इंडक्शन होती है, क्योंकि वो भी आईयूआई का सक्सेस बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक। चलो गुड, इंशाल्लाह फिर